Hi everyone, welcome to the channel Maths Cafe. My name is Nisha Khandilwar, and in today's lecture we will be studying introduction to inverse of a trigonometric function and what is inverse of a function, when we can say inverse will exist, and the second point we will study principal value of inverse trigonometric functions. Using these 2 points we will be studying exercise 2.1. So let us start. So as you can see, the chapter name is inverse trigonometric functions. So we should know the meaning of functions, right? In this chapter we will learn inverse of trigonometric functions. So for understanding this topic, first we should know what is the function and how can we identify whether its inverse will exist or not. So bacha, in class 11th we have already done the definition of the function. So if you remember, the definition of a function was that if in any relation all the elements of set A, what was the definition? If there is a relation which is defined from A to B, if all the elements of set A are having one and only one image, then we can say that relation is a function, right? So here we are having these 5 relations and we have to identify which one is function or not, right? So start with this one. So here you can see all the elements of set A are having image and all the elements are having one and only one image, hence this is a function. Now the second one, you can see this particular element is having 2 images, but the definition says that all the elements should have one and only one image, and since this element is having 2 images, hence this is not a function. Now the third one, all the elements should have one and only one image, but you can see this element is not having any image, hence this is also not a function. Now the fourth, all the elements should have one and only one image. So we can see that this element is having only one image, this element is only having one image, and this is also having only one image, hence it is a function. तो इसमें पर्टिकुलर में काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाती है थ्रू दिस एलिमेंट कि इसकी तो कोई प्री इमेज नहीं है, बट बच्चा एज पर द डेफिनेशन वी हैव टू चेक ओनली फॉर दी first set elements, right? So hence all the elements of set A are having one and only one image, hence it is a function. Now in this again you can see it is having 2 elements and both are having one and only one image, it is a function. And in this it is having 3 elements and all these 3 elements are having one and only one image, hence it is also a function. ठीक है, तो आप देख सकते हैं एक एलिमेंट से एक ही एरो गया है, अगर एक एलिमेंट से 2 एरो चले जाते हैं लाइक दिस, देन यू कैन से इट इज़ नॉट अ फंक्शन. तो यहाँ पे इस एलिमेंट की 2 इमेज है, बट यहाँ पे हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज है. बी में एलिमेंट की बी एलिमेंट में 2 प्री इमेजेस है, तो उसको हमें नहीं देखना है, हमें सेट ए के अकॉर्डिंग देखना है. हेंस वी आर हैविंग फर्स्ट एज अ फंक्शन, फोर्थ एंड फिफ्थ एंड सिक्स्थ आर ऑल्सो फंक्शन, सेकेंड एंड थर्ड हमारे फंक्शंस नहीं हैं. ठीक है, अब आगे देखते हैं. ये तो हो गया फंक्शन. अब बच्चा फंक्शन की कुछ कैटेगरीज है, 1 to 1 एंड ऑन टू. अब हमें वो देखना है कि उसका क्या मतलब है. सो व्हाट इज़ 1 to 1 फंक्शन? या तो फंक्शन आपको 1 to 1 मिलेगा या फंक्शन मैनी टू 1 मिलेगा. ठीक है, तो वी आर हैविंग 2 मेजर कैटेगरीज. द फर्स्ट कैटेगरी इज 1 to 1, and if function is not 1 to 1 then definitely function will be many to 1. And the second category is on to, and if function is not on to then function will be into. So there are 2 categories, either 1 to 1 or many to 1, and the second is on to or into, right? तो पहले हम 1 to 1 का मतलब समझते हैं. 1 to 1 का मतलब क्या है? 1 to 1 correspondence, यानी कि एक ही एलिमेंट से एक ही मैपिंग होनी चाहिए एंड सेकंड सेट से भी एक ही एलिमेंट की एक ही मैपिंग होनी चाहिए. ठीक है, फंक्शन के पार्ट है, तो ऑब्वियसली हमें सेकंड एंड थर्ड के लिए तो देखना ही नहीं है क्योंकि ये फंक्शंस ही नहीं है. हम फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ में देखेंगे कि वो 1 to 1 है या नहीं है. ठीक है, तो बच्चा इन दिस यू कैन सी दैट एक इन तीनों एलिमेंट की एक एक इमेज ही है, 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस होना चाहिए, राइट? तो ये हमारा 1 to 1 है. दिस इज आवर 1 to 1. नाउ इन दिस यू कैन सी कि इन दोनों से एक ही एरो गया है एक ही एलिमेंट पे. सो दिस इज नॉट 1 to 1. 1 to 1 का बहुत सिंपल सा मीनिंग है कि एक एलिमेंट से एक ही एरो जाना चाहिए, एक का एक से ही रिलेशन होना चाहिए. तो अगर 2 एलिमेंट के एक रिलेशन हो गए तो वो 1 to 1 नहीं होगा, वो हो जाएगा मैनी टू 1.
right? Because here two elements are having same image, so this is not 1 to 1, this is not 1 to 1, I can say this is many to 1. Now for this you can see 1 to 1 correspondence है दोनों एलिमेंट के लिए, तो ये 1 to 1 है. And here again these two elements are having only one image, or you can say same image, hence this is many to 1. तो बच्चा अगर many elements are mapping to one element then it will be many to 1, and if one element is mapping with one element only then it will be 1 to 1. So ये 1 to 1 या many to 1 ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया. अब आता है on to और into. ठीक है, on to into बहुत सिंपल सा है. on to क्या कहता है, जितने भी एलिमेंट है सेकेंड सेट में अगर सबके सब मैप हो गए किसी के साथ, यानी कि सबकी प्री इमेजेस हो गई, तो वो on to है. So this is on to, since you can see it is B is having 3 elements और तीनों के arrows गए हैं, so this is on to. Here this element is not having pre-image, hence this is not on to, and अगर on to नहीं होता है तो वो into होता है. Again this element is not having any image, so any pre-image, hence it is into, and this is B is having 2 elements और दोनों की कुछ कुछ प्री इमेजेस है, दोनों के लिए एरो आए हैं, तो ये ऑन टू है. तो अगर सेट बी में कोई भी विदाउट प्री इमेज रह जाता है तो वो इनटू हो जाएगा. तो सबके सब मैप हो जाएंगे तो वो हमारा ऑन टू हो जाएगा. ठीक है, 1 to 1 ऑन टू इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इससे हमें इन्वर्स की डेफिनेशन मिलती है. अब यहाँ पे हमने कुछ और एग्जांपल्स लिए, वही हमें करना है, हमें 1 to 1 ऑन टू आइडेंटिफाई करना है. तो इस फर्स्ट के लिए चेक करते हैं. यू कैन सी दैट पहले 1 to 1 एंड मैनी टू 1 वाला चेक करेंगे, देन ऑन टू इनटू. ठीक है, या तो 1 to 1 होगा एंड हमारे पास 4 कैटेगरीज है बच्चा, या तो 1 to 1 होगा या मैनी टू 1 होगा, इनमें से कोई एक मिलता है. एंड देन नेक्स्ट है ऑन टू होगा या इनटू होगा, इनमें से कोई एक मिलता है. तो ये देखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं दीज 2 एलिमेंट्स आर मैपिंग ओनली one element, same element, so this is many to 1, this is not 1 to 1, this is many to 1. Now this is many to 1, not 1 to 1. अब on to into के लिए चेक कर लेते हैं. सेट बी में ये एलिमेंट विदाउट प्री इमेज है और कोई भी विदाउट प्री इमेज रह जाता है तो वो इनटू होता है, सो दिस इज इनटू नॉट ऑन टू. ठीक है, अब सेकंड के लिए चेक करते हैं. सो यू कैन सी दिस इज 1 to 1, राइट, 1 to 1, 1 to 1 mapping है, and since all the elements of B are having pre images, hence this is on to, this is on to. Now the next you can see this is many to 1, this is not 1 to 1 because the first and second element are having same image, and this is on to because B में जितने भी elements हैं सबके सब use हुए हैं. And the fourth one is 1 to 1, 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस है, बट दिस इज इनटू क्योंकि सेट बी में एक एलिमेंट रह गया जिसकी प्री इमेज नहीं है. ठीक है, अब हमें करना क्या है बच्चा, ये जो हमने डायग्राम बनाया है इससे हम क्या बनाना चाहते हैं, इसकी इमेज हम विजुअलाइज करना चाहते हैं. अगर हम इसकी इमेज विजुअलाइज करें तो वो कैसी बनेगी. ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, इसकी इमेज विजुअलाइज करने वाले हैं. तो अगर FA2B लिया है तो ये इन्वर्टिबल तभी होगा जब इसकी इमेज जो बनेगी वो भी एक फंक्शन बनेगा. तो इसकी इमेज कैसे बनेगी, आपको विजुअलाइज करना है. ये A to B है तो एज इट इज़ B to A करके, राइट. तो ये B पहले आ जाएगा, ये बाद में आ जाएगा, सेम डायग्राम बनाना है. तो इस एलिमेंट से ऐसे मैपिंग होगी, एंड देन यू कैन सी कि दीज 2 एलिमेंट्स आर मैपिंग टू 1 एलिमेंट. तो जब आप इसकी इमेज लोगे तो ये एलिमेंट इन दोनों से मैप करेगा. अब आपको देखना है क्या ये फंक्शन है. This is not a function. As per the definition of function, all the elements of first set should have one and only one image, and since you can see this element is having 2 images, hence this is not a function. And since this is not a function, the original function is not invertible. तो invertible कब होगा, जब उसका इमेज विजुअलाइज करके फंक्शन बन जाता है. तो सो दिस इज़ नॉट इन्वर्टिबल, ये इन्वर्टिबल नहीं है. इन्वर्टिबल नहीं है यानी कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करने वाला है. नाउ द सेकंड डायग्राम, तो अगर हम इसकी इमेज विजुअलाइज करें, इसका रिफ्लेक्शन, इसकी मिरर इमेज विजुअलाइज करें तो वो कुछ ऐसे बनेगा. एंड यू कैन सी इट इज़ अ फंक्शन, हैंस इट इज़ इन्वर्टिबल. ये इन्वर्टिबल है क्योंकि इसकी अगर हम मिरर इमेज विजुअलाइज करते हैं एज इट इज़ A to B को B to A बनाते हैं तो वो भी फंक्शन बनता है. नाउ द थर्ड वन, अगर इसकी हम मिरर इमेज विजुअलाइज करें कि ये बीच में मिरर है और इसकी मिरर इमेज विजुअलाइज करें तो ये कुछ ऐसे बनेगा. एंड यू कैन सी दिस इज़ नॉट अ फंक्शन बिकॉज यहाँ पे इस एलिमेंट की 2 इमेजेस आ गई है, तो ये हमारा नॉट इन्वर्टिबल होगा.
तो ये सब कुछ बच्चा चैप्टर 1 में आप डिटेल में करोगे रिलेशंस एंड फंक्शंस में, बट इन्वर्स का इस चैप्टर में रोल है, इसलिए वी आर बेसिकली अंडरस्टैंडिंग दैट इन्वर्स होता क्या है। नाउ द फोर्थ एग्जाम्पल, अगर इसकी इमेज हम विजुअलाइज करते हैं मिरर इमेज, तो ये ऐसे कुछ करके बनेगा एंड यू कैन सी दिस एलिमेंट इज नॉट हैविंग एनी image, hence this is again not a function, and since this is not a function, this is not invertible, the original word is not invertible। तो हमें जो कंक्लूजन मिला है कि कब हम फंक्शन हमें इन्वर्टिबल मिलेगा, जब फंक्शन 1 to 1 एंड ऑन टू दोनों होगा। आप खुद से विजुअलाइज करो, 1 to 1 होगा एंड ऑन टू होगा तभी वो इन्वर्टिबल होगा, राइट। क्योंकि अगर फंक्शन इन टू हो गया तो हमारा बी में कोई एलिमेंट रह गया होगा, और बी में जब कोई एलिमेंट रह गया होगा तो उसकी मिरर इमेज में उसकी इमेज नहीं बन पाएगी और वो फंक्शन नहीं बन पाएगा, राइट। तो फंक्शन का ऑन टू होना ज़रूरी है। एंड अगर फंक्शन मैनी टू वन है तो मैनी टू वन इस टाइप का जब आप मिरर इमेज लेंगे तो एक एलिमेंट से दो इमेजेस मिल जाएंगे एंड अगेन उस केस में वो फंक्शन नहीं बन पाएगा। तो फंक्शन इन्वर्टिबल होने के लिए जो मेजर कंडीशन आई है निकल के, वो आई है कि फंक्शन शुड बी 1 to 1 एंड ऑन टू। इफ फंक्शन इज नॉट 1 to 1 एंड ऑन टू, देन इनवर्स ऑफ दैट फंक्शन विल नॉट एग्जिस्ट, राइट। ठीक है, तो ये सब डिटेल में आप चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस में करेंगे, बट इतनी इन्फॉर्मेशन, इतनी नॉलेज हमें होनी चाहिए टू अंडरस्टैंड इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, राइट। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे आते हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं विद द साइन एक्स। ठीक है, सो आई एम टेकिंग फंक्शन साइन एक्स, वी शुड नो द डोमेन एंड रेंज ऑफ साइन एक्स। तो अगर हम साइन एक्स का ऐसे ही डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, तो मान लो ये फर्स्ट सेट हुआ और ये सेकंड सेट हुआ, तो फर्स्ट सेट क्या होता है, डोमेन। डोमेन होता है साइन एक्स का ऑल रियल नंबर्स, एंड इसमें हम ले रहे हैं इसका सेकंड सेट रेंज ही ले रहे हैं। तो बच्चा -1 to 1 रेंज होती है, यानी कि इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब यूज़ हो जाते हैं। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब कुछ यूज़ हो जाते हैं, तो वी कैन से दिस फंक्शन इज ऑन टू। ये हमारा ऑन टू तो है। ऑन टू कब होता है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं सेकंड सेट में सबके सब 3 इमेजेस मिले, एंड -1 to 1 इसकी रेंज है, तो हर एक एलिमेंट इसका आंसर आता है, इसकी इमेजेस किसी ना किसी मेंबर की बनते हैं, इसलिए ये ऑन टू तो है। अब हमें चेक करना है 1 to 1 है या मैनी टू 1 है। तो साइन के लिए कुछ एंगल्स लेते हैं, यहाँ पे रियल नंबर्स एंगल्स का रोल प्ले कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग 0, आई एम टेकिंग π/6, आई एम टेकिंग π/3, π/2 ले लेते हैं, पाई ले लेते हैं, 2π ले लेते हैं, और काफ़ी और रियल नंबर सब आएंगे, बट हम सबको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो बच्चा 0 कहाँ मैप करेगा, साइन 0 क्या होता है 0, तो ये मैप करेगा हमारा 0 पे। साइन पाई इज़ ऑल्सो 0, ये भी 0 पे मैप करेगा। साइन 2π इज़ ऑल्सो 0, ये भी 0 पे मैप करेगा। एंड जो π/6 की वैल्यू है वही 5π/6 की वैल्यू है। तो साइन की तो वैल्यूज़ रिपीट होती है। साइन की क्या, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सबकी वैल्यू रिपीट होती है। सो डैट मीन्स साइन फंक्शन हमारा मैनी टू 1 है, साइन इज़ नॉट 1 to 1। तो अगर ये मैनी टू 1 एंड ऑन टू है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, एंड वी हैव टू स्टडी इन्वर्स फंक्शन। तो फिर मैथमेटिशियन ने क्या किया, बिकॉज इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, ये 1 to 1 नहीं है, ऑन टू तो है, ये ऑन टू हमने बना दिया क्योंकि हमने सेकेंड सेट इसकी रेंज ही बनाया है, बट ये 1 to 1 नहीं बन पा रहा था। तो उसके लिए हमें या मैथमेटिशियन ने क्या किया, ये जो डोमेन है ऑल रियल नंबर्स, इसको छोटा कर दिया। उसको हमें इतना छोटा लेना है कि कोई भी वैल्यू रिपीट ना हो। ये वैल्यूज रिपीट ही तो हो रही है, पाई पे वैल्यू रिपीट हुई 2π पे, तभी तो ये मैनी टू 1 बन गया। तो अगर एक भी वैल्यू रिपीट नहीं होगी, हम वही एंगल्स लें जिन पे एक सिंगल वैल्यू आती है, तो वो 1 to 1 करस्पॉन्डेंस हो जाएगा, वो 1 to 1 बन जाएगा। तो सिंगल वैल्यू आए, इसके लिए साइन की डोमेन जो रियल नंबर्स थी उसको कर दिया गया -π/2 to π/2। बिकॉज इन -π/2 to π/2 अगर डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं आपको रिप्रेजेंट करूँ, -π/2 to π/2 क्वाड्रेंट वाइज कहाँ आएगा, ये होता है 0 एंड दिस इज़ π/2, दिस इज़ 3π/, दिस इज़ पाई एंड दिस इज़ 3π/2, राइट। तो ये पाई है, ये 3π/2 है, एंड देन 2π एंड सो ऑन, ये ऐसे चलता जाता है। बट अगर हम रिवर्स डायरेक्शन में चलते हैं बच्चा, तो नेगेटिव में हमें लेना होता है, ये -π/2 है। So basically -π/2 to π/2 is this area, and this is fourth quadrant and this is first quadrant, and if you know sin first quadrant में पॉजिटिव होता है, फोर्थ में नेगेटिव होता है। तो यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में -π/2 to 0 में एक भी वैल्यू रिपीट नहीं होगी, एंड देन 0 to π/2 में साइन की वैल्यूज रिपीट होगी बट विद पॉजिटिव साइन।
तो इन दिस इंटायर इंटरवल दैट इज -π/2 टू π/2 साइन की एक भी वैल्यू रिपीट नहीं होगी, किसी भी एंगल पे वैल्यू रिपीट नहीं होगी, हैंस इट विल बिकम 1:1 एंड हैंस नाउ द फंक्शन विल बिकम इन्वर्टिबल। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के स्टडी करने के लिए सबकी डोमेन को चेंज किया गया, क्योंकि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1:1 नहीं है, सबकी वैल्यूज़ रिपीट होती है, इसलिए इनकी डोमेन को चेंज किया गया एंड देन हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को स्टडी कर पाए, राइट। तो जो डोमेन चेंज करके बनी गई उन डोमेन को हमें स्टडी करना है। आई होप अब ये क्लियर हो गया होगा। मैं रिपीट कर देती हूँ बच्चा, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को स्टडी करने के लिए हमें फंक्शंस की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि फंक्शन क्या होता है और फंक्शन इन्वर्टिबल कब होता है। तो फंक्शन को इन्वर्टिबल होने के लिए दो पॉइंट्स मेजर हैं, 1:1 होना चाहिए फंक्शन एंड ऑन टू होना चाहिए। अगर फंक्शन 1:1 एंड ऑन टू दोनों है तो ही फंक्शन इन्वर्टिबल होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जितने भी हैं कोई भी 1:1 नहीं था तो उन्हें 1:1 बनाया गया। 1:1 होता क्या है? 1:1 ये कहता है कि जो भी फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स हैं उनका एक ही इमेज होना चाहिए, एक ही आउटकम होना चाहिए। बट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो जो एंगल्स हैं उनकी वैल्यूज़ रिपीट होती है। जैसे साइन की अगर मैं बात करूँ तो π/6 पे जो वैल्यू होती है वही 5π/6 पे होती है। जो साइन की वैल्यू 0 पे होती है वही पाई पे होती है, वो 2π पे, वो 3π पे, और सबकी वैल्यूज़ क्या होती है 0, और इन सबकी वैल्यूज़ क्या होती है 1/2, राइट। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 1:1 नहीं निकल के आ रहा था, तो उस 1:1 को बनाने के लिए हमने डोमेन को चेंज किया, डोमेन को छोटा कर दिया, उसका एक सबसेट ले लिया एंड वो ऐसा लिया कि कोई भी वैल्यू रिपीट ना हो ताकि 1:1 बन जाए। तो हमने साइन के लिए लिया -π/2 टू π/2, ये फिक्स नहीं है। CBSE के लिए आपके NCERT के अकॉर्डिंग टिल 12th हम इसको स्टडी करेंगे, लेकिन आफ्टर 12th जब आप हायर क्लासेस में करोगे देन यू विल स्टडी कि ये फिक्स नहीं होता है, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। हमें कोई ऐसा इंटरवल लेना होता है कि कोई वैल्यू रिपीट ना हो, तो इसमें भी कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है, राइट। अब ऐसे ही बाकी सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन को भी चेंज किया गया ताकि वो 1:1 बने, एंड 1:1 बनेंगे तो इन्वर्टिबल बन जाएंगे। नाउ यू कैन सी दिस टेबल। सो ये टेबल आपने की होगी 11th क्लास में। यहाँ पर हमारे पास ये डोमेन है और ये रेंज है, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए अच्छे से कि किसकी क्या डोमेन है, किसकी क्या रेंज है। तो बच्चा सबकी डोमेन को मॉडिफाई किया गया कि सच दैट उनका इन्वर्स एग्जिस्ट कर सके। तो साइन की डोमेन को क्या बनाया गया? अगर हम मॉडिफाइड डोमेन लिखें तो मॉडिफाइड डोमेन जो बनी है वो हम लिखवा देते हैं। तो जो मॉडिफाइड डोमेन है, साइन की डोमेन को चेंज करके क्या बनाया गया? -π/2 टू π/2 क्लोज्ड इंटरवल। कॉस की इज 0 to π क्लोज्ड, क्योंकि 0 to π मीन्स फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट, एंड कॉस फर्स्ट में पॉजिटिव होता है, सेकेंड में नेगेटिव होता है। tan की ली गई -π/2 टू π/2, ये डोमेन बनाई गई लेकिन विद द ओपन इंटरवल। ओपन क्यों? क्योंकि -π/2 एंड π/2 इंक्लूड नहीं होता है, tan वहाँ पर डिफाइन नहीं होता है। कॉट की बच्चा 0 to π ओपन इंटरवल, अगेन एट 0 एंड π कॉट इज नॉट डिफाइंड, हैंस वो इंक्लूडेड नहीं होंगे। सीकेंड की सेम एज साइन विच इज -π/2 टू π/2 बट एक्सक्लूडेड 0। वाई एक्सक्लूडेड 0? बिकॉज सेकेंड 0 पे नॉट डिफाइन होता है। नाउ द कॉसिकेंड, बच्चा यहाँ छोटा सा एरर हो गया, ये जो है ये हमारी सीकेंड की नहीं होती है, ये कॉसिकेंड की होती है। कॉसिकेंड इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, राइट। तो कॉसिकेंड एंड साइन की सेम है, तो ये जो हमारी डोमेन है वो कॉसिकेंड की है, वो साइन की नहीं है। कॉसिकेंड की है, सीकेंड की नहीं है। सीकेंड इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, तो सीकेंड की डोमेन है सिमिलर एज कॉस विच इज 0 to π बट एक्सक्लूडेड π/2 बिकॉज एट π/2 सीकेंड इज नॉट डिफाइंड। तो ये जो येलो में लिखे है मॉडिफाइड डोमेन है, यानी कि इन्वर्स को स्टडी करने के लिए हमने जितनी भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है सबकी डोमेन को मॉडिफाई किया, ठीक है। अब बच्चा हमारे पास एक रिजल्ट है, अब ये डोमेन चेंज किया, अब इनके इन्वर्स एग्जिस्ट करते हैं, अब इन्वर्स को हमें स्टडी करना है, ठीक है। अब हमारे पास एक रिजल्ट है, वो रिजल्ट क्या कहता है? द रिजल्ट सेज दैट इफ f इज डिफाइंड फ्रॉम a to b and f is invertible, if f is defined from a to b and if f is invertible, then its inverse will be represented by f inverse and it will be defined from b to a। तो अगर f a to b डिफाइंड है और ये इन्वर्टिबल है तो इसका इन्वर्स b to a डिफाइंड होगा, ठीक है, राइट। a एंड b आर दी डोमेन एंड रेंज, a डोमेन है एंड b रेंज है। तो इनकी डोमेन मॉडिफाई कर दी है। अब हमारे इन्वर्स को स्टडी करने के लिए हम इन डोमेन को भूल जाएंगे,
ठीक है, इन्वर्स को स्टडी करने के लिए। अदरवाइज जो डोमेन है वो डोमेन ही है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, लेकिन इन्वर्स को स्टडी करने के लिए हमने इनकी डोमेन को मॉडिफाई किया। अब ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, अगर ये हेयर टू हेयर डिफाइंड है तो इनके इन्वर्स रिवर्स हो जाएंगे, यानी कि इन्वर्स के लिए ये डोमेन बन जाएगी और ये रेंज बन जाएंगे, एंड सेम फॉर द रिमेनिंग फंक्शंस, राइट। तो अब इन्वर्स के लिए अगर हम डोमेन एंड रेंज लिखते हैं, सो डोमेन ऑफ साइन इन्वर्स विल बी द रेंज ऑफ साइन एक्स विच इज -1 to 1. So -1 to 1 is the domain for sine inverse, and the range is modified domain of trigonometric function which is -π/2 to π/2. cos इन्वर्स का -1 to 1 जो cos x का रेंज होता है वो यहाँ पे डोमेन बनेगा, जो वो मॉडिफाइड डोमेन है वो यहाँ पे रेंज बन जाएगा विच इज़ 0 to π। ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए टिप्स पे। tan इन्वर्स x का जो रेंज होता है वो डोमेन होता है वो रियल नंबर्स होता है, क्योंकि tan x का रेंज इज रियल नंबर्स, एंड यहाँ पे जो रेंज है वो मॉडिफाइड डोमेन आएगी, एंड दैट वाज -π/2 to π/2 ओपन इंटरवल। Now for cot, the domain is all real numbers, but the range is 0 to π open interval. Secant is reciprocal of cos, and इसकी जो डोमेन होती है वो रेंज होती है secant x की, and which is all real numbers except -1 to 1, and जो इसकी रेंज है वो मॉडिफाइड डोमेन है, and which is 0 to π closed but except 0 except π/2. Why except π/2? Because π/2 पे secant डिफाइन नहीं होता है। cosecant इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, तो यहाँ पे जो उसकी रेंज होती थी वो डोमेन बनेगी विच इज़ द सेम एज secant और रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1 to 1, एंड द रेंज विल बी मॉडिफाइड डोमेन ऑफ cosecant, एंड विच इज़ -π/2 to π/2 एक्सेप्ट 0। तो ये टेबल आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए, ठीक है। तो रेंज तो जो डोमेन है वो याद करने का बहुत सिंपल सा तरीका है। जो भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की डोमेन है वो एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्रिक की रेंज है, बट जो रेंज है वो क्या है, मॉडिफाइड डोमेन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। तो ये अच्छे से आपको याद होना चाहिए, ये वाला कॉलम, राइट। अब ये हमने एक रिजल्ट किया है कि अगर कोई फंक्शन a to b डिफाइंड एंड इट इज़ इन्वर्टिबल, देन इन्वर्स विल बी डिफाइंड फ्रॉम b to a। यहाँ पे और भी हमारे पास रिजल्ट्स हैं, तो दिस इज़ द फर्स्ट रिजल्ट। द सेकेंड रिजल्ट सेज दैट इफ f is invertible, f is any function, and if it is invertible and f is defined from a to b, then obviously f inverse will be defined from b to a. Then we are having some result. The first result says that f of f inverse x will be x, यानी कि f इन्वर्स को नलीफाई कर देता है। नलीफाई इज सेम एज कैंसिलेशन। तो f इन्वर्स पे अगर हम ऑपरेट करते हैं तो ये नलीफाई कर देगा, जो ब्रैकेट में लिखा है वो आंसर आ जाएगा। बट x शुड बी अ मेंबर ऑफ f डोमेन ऑफ f इन्वर्स के डोमेन का मेंबर होना चाहिए विच इज़ b, ठीक है, क्योंकि वो उसके ब्रैकेट में लिखा है। द सेकेंड इज f इन्वर्स ऑफ f ऑफ x। जैसे f ने f इन्वर्स को नलीफाई किया, f इन्वर्स भी f को नलीफाई कर देता है, x ही आएगा, बट यहाँ पे x f के डोमेन का मेंबर होना चाहिए, और f की डोमेन क्या है a, तो यहाँ पे x a का मेंबर होना चाहिए। ये हमने क्यों लिखा है, क्योंकि इससे हमें इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलने वाले हैं। वो इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है, सो देयरफॉर अब जो रिजल्ट्स हमें इससे मिलेंगे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म के हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रिजल्ट्स हैं। तो फर्स्ट रिजल्ट इज दिस, आई कैन से साइन ऑफ साइन इनवर्स x, साइन ऑफ साइन इनवर्स x will be x, but x should be a member of domain of sine inverse. And what is the domain of sine inverse? Domain of sine inverse is -1 to 1, right? ऐसे ही हम tan का लिख लेंगे, cos का लिख लेंगे, सबका लिख लेंगे। So tan of tan inverse x will be x, but x should be a member of domain of tan inverse, and domain of tan inverse क्या है, और रियल नंबर्स, ये सब हमने लिखा हुआ है। तो बच्चा ऐसे ही हमारे पास 6 रिजल्ट बन जाएंगे, राइट। सो हमारे पास cos का बन जाएगा, cot का बन जाएगा, tan का तो लिख ही लिया है, secant cosecant, राइट। तो ये सब हम नलीफाई कर देते हैं अपने आप को। तो अगर cos है तो cos इन्वर्स को नलीफाई करेगा, नलीफाई को आप कैंसिल करके नहीं दिखाइएगा। सो cot ऑफ cot इन्वर्स x विल बी x, बट कंडीशन वही है कि ये इनके डोमेन के मेंबर होने चाहिए। अब डोमेन के मेंबर नहीं है तो आप नलीफाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो दे शुड बी द मेंबर्स ऑफ देयर डोमेन, एंड व्हाट इज़ देयर डोमेन वो हमें अच्छे से याद होनी चाहिए। तो जो डोमेन है cos की वो है -1 to 1, इन्वर्स की बात कर रहे हैं क्योंकि x इन्वर्स का आर्ग्यूमेंट है।
Here again x should be a domain of cot inverse, and cot inverse की domain है odd real numbers. The domain x should be a member of domain of secant inverse which is odd real numbers except -1 to 1, and here again x belongs to odd real numbers except -1 to 1. तो बच्चा इसमें I can say that बेसिकली मीनिंग ये है कि अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिखा है बाहर और उसके अंदर वही उसी का इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखा है तो आंसर विल बी एक्स, बट एक्स शुड बी अ मेंबर ऑफ इट्स डोमेन. तो आई एम राइटिंग डोमेन ऑफ दिस ITF जो अंदर लिखा है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अगर उसके डोमेन का मेंबर है तो वो नलीफाई हो जाएगा. ऐसे ही सेकेंड रिजल्ट आता है. तो सेकेंड रिजल्ट क्या आएगा? सेकेंड रिजल्ट आएगा इसका रिवर्स, डेट इज़ अगर बाहर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखा है और सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अंदर लिखा है तो वो नलीफाई कर देगा, लेकिन x शुड बी अ मेंबर ऑफ डोमेन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. बट यहाँ पे आ जाता है डोमेन कौन सा वाला, पुराना वाला या नया वाला. तो ये जो डोमेन है ये है मॉडिफाइड डोमेन. सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. अगर वो मॉडिफाइड डोमेन का मेंबर है तो ही आप नलीफाई करके x लिखोगे. अगर वो मॉडिफाइड डोमेन का मेंबर नहीं है तो आप कैंसिल करके x नहीं लिख पाओगे. ठीक है. तो यहाँ से अगर हम इसको डिटेल में लिखें, इससे जो 6 रिजल्ट बनेंगे उनको हम लिखें. तो फर्स्ट रिजल्ट, साइन इनवर्स ऑफ साइन x will be x if x is a member of its domain. Its means साइन, एंड साइन का कौन सा मॉडिफाइड विच इज़ -π/2 to π/2. तो अगर वो इसका मेंबर है तो ही वो नलीफाई करेगा, अगर नहीं है तो नहीं करेगा. तो दिस इज़ इंपॉर्टेंट क्योंकि काफ़ी बार ऐसे भी आपको मिलेगा कि वो उसका मेंबर नहीं है. सेम फॉर tan इनवर्स, सेम फॉर tan कॉट, इन सब के लिए हम लिख लेंगे. एंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट यही है कि ये जो x है ये इसकी डोमेन का मेंबर होना चाहिए. यहाँ पे डोमेन क्या है? -π/2 to π/2 ओपन, मॉडिफाइड डोमेन की बात हो रही है. द नेक्स्ट विल बी cos इनवर्स ऑफ cos x, एंड अगेन इट विल बी x if x is a member of modified domain of cos which is 0 to π closed. The next is cot inverse of cot x will be x if x is a member of its modified domain which is open 0 to π. The next is secant inverse of secant x will be x if x is a member of its modified domain and which is closed 0 to π except π/2. And the next is cosecant inverse of cosecant x. It will be x if x is a member of its modified domain which is -π/2 to π/2 except 0. राइट. तो ये जो 6 रिजल्ट्स हैं ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मॉडिफाइड डोमेन का रोल है. इसमें तो जो डोमेन है ITF के वो रेंज है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की और इनको मॉडिफाई नहीं किया गया, ये तो सेम है. तो ये नॉर्मली x इसी का मेंबर मिलेगा, x कहीं और से नहीं मिलेगा, इसी से मिलेगा. तो ये तो नलीफाई होकर बाहर आ ही जाएंगे. तो जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाहर है, ITF अंदर है, तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन इसका रिवर्स है, यानी कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बाहर है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अंदर है. तो मेक श्योर x शुड बी अ मेंबर ऑफ देयर मॉडिफाइड डोमेन, तभी आप नलीफाई कर सकते हैं. अगर वो उनकी मॉडिफाइड डोमेन का मेंबर नहीं है तो आप नलीफाई नहीं करेंगे. तो जितना भी हमने स्टडी किया है ये सब फंक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी किया है, राइट. अब ITF जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि वर्क कैसे करता है. फॉर एग्जांपल वी नो साइन ऑफ π/6 इज़ 1/2, राइट, वी नो. तो यहाँ पे इन्वर्स कैसे रोल प्ले करता है? इन्वर्स ऐसे रोल प्ले करता है कि अगर साइन π/6 1/2 है तो ये है आपका x का रोल प्ले कर रहा है और ये y का, यानी कि ये प्री इमेज और ये इमेज है. तो वी कैन से इसका इन्वर्स दैट इज साइन इन्वर्स ऑफ 1/2 विल बी π/6. ठीक है. तो डैट मीन्स अगर साइन वहाँ जाएगा तो वो इन्वर्स बन जाएगा, राइट. तो कोई भी फंक्शन, अभी तक हम साइन को वहाँ लेके जाते थे तो विद एंगल लेके जाते थे, अब विदाउट एंगल अगर वो जाता है तो वो इन्वर्स बन जाता है, उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. इन्वर्स का मतलब बिल्कुल भी रेसिप्रोकल नहीं है बच्चा, दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग. तो साइन इन्वर्स ऑफ 1/2 इज π/6, राइट. वन मोर एग्जाम्पल, इफ आई टेक, इफ आई एम हैविंग कॉस इन्वर्स ऑफ से √3/2, तो इसका आंसर क्या आएगा? आपको जस्ट ये सोचना है कि कॉस की वैल्यू √3/2 कहाँ होती थी, तो एंड वो होती थी 630 पे विच इज़ π/6. सो आंसर विल बी π/6, राइट. तो ITF में आपको रिवर्स सोचना है, तो जो भी ब्रैकेट में लिखा है यानी कि वो वैल्यू कब आती है आपको वो एंगल लिखना होगा. ठीक है.
राइट। ITF को हम स्टडी क्यों करते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास कोई एंगल मिसिंग है और हमारे पास वैल्यू है इसकी से 1/√2 एंड वी वांट टू फाइंड दिस एंगल, सो आई कैन राइट दिस एज x और साइन को उठा के हम वहाँ ले जाके साइन इनवर्स बना देते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे करके हम इसको यूज़ करते हैं, राइट। अब हमारे पास कुछ आइडेंटिटीज़ हैं, सिंपल सी आइडेंटिटीज़ हैं। तो फर्स्ट आइडेंटिटी इज़ साइन इनवर्स ऑफ -x इज़ माइनस साइन इनवर्स x, ठीक है बच्चा। जैसे एंगल्स हम बोलते थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो ब्रैकेट में लिखा होता है उनको हम एंगल्स बोलते हैं। यहाँ जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ब्रैकेट में लिखा होगा उनको हम आर्ग्यूमेंट बोलेंगे, ठीक है। सो वी विल से आर्ग्यूमेंट। तो अगर साइन इनवर्स अपने आर्ग्यूमेंट में नेगेटिव साइन कंसिडर करता है तो वो एज इट इज़ नेगेटिव बाहर निकाल देता है, बट कंडीशन वही है कि x शुड बी अ मेंबर ऑफ डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एंड विच इज़ -1 to 1, राइट। डोमेन यही होती है ITF की। सेकेंड कॉस इनवर्स, थर्ड इज tan इनवर्स, cot इनवर्स, cos इनवर्स एंड secant इनवर्स, राइट। तो ये है माइनस से रिलेटेड आइडेंटिटीज दैट इफ दे कंटेन माइनस साइन इन देयर आर्ग्यूमेंट, राइट। सो इफ साइन इनवर्स कंटेन माइनस साइन इन देयर आर्ग्यूमेंट तो एज इट इज़ बाहर निकाल देता है। सेम tan इनवर्स करता है, वो भी एज इट इज़ बाहर निकाल देगा। x शुड बी मेंबर ऑफ इट्स डोमेन एंड विच इज़ ऑल रियल नंबर्स। एंड सेम cosecant इनवर्स करता है, तो ये भी माइनस को बाहर निकाल देता है, राइट। एंड x शुड बी अ मेंबर ऑफ इट्स डोमेन विच इज़ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1 to 1। बट cos इनवर्स पाई माइनस कॉस इनवर्स x, ये है इसका फॉर्मूला। कॉट का भी पाई माइनस कॉट इनवर्स फॉर्मूला है एंड सीकेंट का है पाई माइनस सीकेंट इनवर्स x। तो ये तीनों अलग है इनका फॉर्मूला। यू कैन सी कि फर्स्ट, थर्ड एंड सिक्स में सिमिलैरिटीज एंड सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ में सेम कंडीशन। द x शुड बी अ मेंबर ऑफ इट्स डोमेन, सो इट्स डोमेन इज -1 to 1, इट्स डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स एंड इट्स डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1 to 1, राइट। तो बच्चा जो भी अभी हमने स्टडी किया ये सब कुछ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अगर हम समराइज़ करें या कंक्लूज़न देखें कि क्या है ओवरऑल कंक्लूज़न, तो ओवरऑल कंक्लूज़न को याद करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वी कैन मेक 2 ग्रुप्स, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, ठीक है। तो इसको नाम दिया हमने ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। नाउ इन दीज 2 ग्रुप्स we will take 3 members and उन members को just a second, right। So for learning point of view we can make 2 groups. In group 1 I am putting sin inverse x, इट्स रेसिप्रोकल विच इज़ cosecant इनवर्स। इसका रेसिप्रोकल नहीं है वैसे, ये इनवर्स में सेम हो डिफरेंट हो जाते हैं रिजल्ट, वो बाद में सीखेंगे। एंड नेक्स्ट tan इनवर्स, हेयर आई एम टेकिंग cos इनवर्स एंड cos का रेसिप्रोकल विच इज़ secant इनवर्स एंड देयर फ्रेंड cot इनवर्स। हम ग्रुप वाइज क्या लर्न कर सकते हैं बच्चा, इनमें ना कुछ सिमिलैरिटीज़ है तो उनको हम याद कर सकते हैं। फर्स्ट सिमिलैरिटी इज़ दिस, अगर साइन इनवर्स, cosecant इनवर्स या tan इनवर्स, इन तीनों में से कोई भी आता है विद माइनस साइन इन देयर आर्ग्यूमेंट तो वो माइनस को एज इट इज़ बाहर निकाल देते हैं। आप देख सकते हैं इन तीनों में ही ये होता है। बट इन तीनों के मेंबर्स अगर माइनस साइन कंटेन करते हैं तो ये बनता है पाई माइनस सेम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विद द पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो ये लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से साइन, cosecant, tan इनवर्स ये तीनों माइनस को बाहर निकाल देता है एज इट इज़, और ये तीनों पाई माइनस करते हैं। सेकेंड सिमिलैरिटी ये है कि इनकी जो मॉडिफाइड डोमेन थी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, और यू कैन से रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर सिमिलर। तो अगर यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाहर लिखा हुआ है और अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखा हुआ है विद x, तो ये नलीफाई कब करता है, जब x डोमेन का मेंबर हो, राइट। मॉडिफाइड डोमेन का, मॉडिफाइड डोमेन इन तीनों की सिमिलर है, सेम नहीं है, सिमिलर है। लाइक एक की क्लोज्ड -π/2 to π/2 है, एक की ओपन -π/2 to π/2 और एक की cosecant की क्लोज लेकिन एक्सेप्ट 0 है। तो लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से मोटा मोटा याद करने के लिए हम ये याद कर सकते हैं कि -π/2 to π/2 है रफली, राइट। एंड यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को नलीफाई करके x तब प्रोवाइड करेगा जब x इनकी मॉडिफाइड डोमेन का मेंबर हो, एंड इनकी जो मॉडिफाइड डोमेन है वो है 0 to π, रफली।
क्योंकि जो सिमिलैरिटीज़ है वो 0 to पाई है, एक की क्लोज 0 to पाई है, एक की ओपन 0 to पाई है, एक की 0 to पाई एक्सेप्ट पाई बाय 2 है। तो बच्चा ये जो है, जो भी हमने किया उसको इन दोनों पॉइंट से हम समराइज़ कर सकते हैं कि अगर इस ग्रुप का मेंबर है और माइनस कंटेन कर रहा है एज इट इज़ बाहर निकालेगा, इस ग्रुप का मेंबर है माइनस कंटेन कर रहा है तो पाई माइनस करेगा। एंड द सेकेंड ITF TF को तभी नलीफाई करेगा जब x माइनस पाई बाय 2 to पाई बाय 2 और इसमें x 0 to पाई है, राइट। बाकी जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे आपको क्लियर होता जाएगा। अब कुछ क्वेश्चंस पिक कर लेते हैं। सो वी हैव टू फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग। प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं तो बच्चा वही मतलब है कि आपको सिंप्लीफाई करना है एज पर द मॉडिफाइड डोमेन। तो cos इनवर्स ऑफ √3/2 एंड वी नो cos की वैल्यू √3/2 कब होती है, पाई बाय 6, तो आंसर विल बी पाई बाय 6। इस पे आइए साइन इनवर्स ऑफ -½ बच्चा माइनस कंटेन कर रहा है, आपको देखना है ग्रुप 1 और ग्रुप 2, इट इज़ अ मेंबर ऑफ ग्रुप 1। ग्रुप 1 माइनस को एज इट इज़ बाहर निकाल देते हैं, तो आप माइनस को बाहर निकाल देंगे, बचेगा साइन इनवर्स 1/2 एंड अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो साइन की वैल्यू 1/2 कहाँ होती है, पाई बाय 6 पे, माइनस एज इट इज़, तो फाइनल आंसर विल बी माइनस पाई बाय 6, राइट। थर्ड पे आते हैं विच इज़ tan इनवर्स माइनस √3, इट इज़ कंटेनिंग माइनस, सो यू हैव टू चेक whether it is a member of group 1 और group 2. It is a member of group 1. group 1 के member माइनस को as it is बाहर निकाल देते हैं। So tan inverse of √3 and tan की वैल्यू √3 कहाँ होती है, पाई बाय 3 पे, so final answer is minus पाई बाय 3. Now cos inverse -½ बच्चा, cos inverse is a member of group 2 and it is containing माइनस, तो group 2 क्या करते हैं, पाई माइनस cos inverse of पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट विच इज़ 1/2, सो द आंसर विल बी पाई माइनस 1/2 होती है वैल्यू पाई बाय 3 पे, एंड इसको सॉल्व करके यू विल गेट 2 पाई बाय 3, सो फाइनल आंसर इज 2 पाई बाय 3. Now the next question, secant inverse 2/√3, there is no negative sign, so you can write answer directly. 2/√3 जो वैल्यू होती है वो होती है 30 पे, which is पाई बाय 6, राइट. कॉसिकेन इनवर्स -√2 माइनस कंटेन कर रहा है, इट इज़ अ मेंबर ऑफ ग्रुप 1, सो माइनस एज इट इज़ बाहर आ जाएगा. कॉसिकेन इनवर्स √2, कॉसिकेन की वैल्यू √2 होती है पाई बाय 4 पे, सो फाइनल आंसर इज माइनस पाई बाय 4. नाउ द नेक्स्ट, tan इनवर्स 1 ऑफ प्लस, तो ये कम्प्लीटली हमें सॉल्व करना है. tan इनवर्स 1 बच्चा पॉजिटिव है, डायरेक्टली वैल्यू लिख देंगे, पाई बाय 4 पे होती है. ये माइनस कंटेन कर रहा है, इट इज़ अ मेंबर ऑफ ग्रुप 2, सो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, ये हुआ इसके लिए. नाउ इट इज़ ऑल्सो कंटेनिंग माइनस बट इट इज़ अ मेंबर ऑफ ग्रुप 2, सो माइनस एज इट इज़ बाहर निकाल देगा, बचेगा, इट इज़ अ मेंबर ऑफ ग्रुप 1 सॉरी, तो एज इट इज़ माइनस बाहर निकाल देगा एंड ये बचेगा. अब इसे हमें सॉल्व करना है, सो दिस इज़ पाई बाय 4 प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स 1 होता है, हाफ होता है पाई बाय 3 पे, एंड माइनस 1/2 साइन होता है पाई बाय 6 पे. तो इसको आपको कैलकुलेट करना है. आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट, दिस इज माइनस पाई बाय 2, पाई माइनस पाई बाय 2, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 4, सो फाइनल आंसर इज 3 पाई बाय 4, राइट. नाउ नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द एक्सप्रेशन. साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 पाई बाय 3. अब ये देखिए, हमने सीखा था कि कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को तभी नलीफाई करेगा अगर ब्रैकेट में लिखा हुआ उसकी मॉडिफाइड डोमेन का मेंबर है. साइन की मॉडिफाइड डोमेन क्या है, माइनस पाई बाय 2, 2 पाई बाय 2, एंड दिस इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ दिस, ये इसका मेंबर नहीं है बच्चा. 2 पाई बाय 3 इस पर्टिकुलर एरिया में नहीं आता है, इंटरवल में नहीं आता है, तो हम इसको नलीफाई नहीं कर सकते. हम नलीफाई नहीं कर सकते तो सॉल्व कैसे करेंगे. तो अब यहाँ पे क्लास 11th का टॉपिक यूज़ होगा. अगर क्लास 11th में आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अच्छे से की है तो अब यहाँ पे आपको उसकी हेल्प मिलेगी. सो बच्चा, साइन वर्स एज इट इज़, 2 पाई बाय 3 जो लिखा हुआ है इसको हम ब्रेक करेंगे. आई कैन राइट 2 पाई बाय 3 एज पाई माइनस पाई बाय 3, राइट. नाउ पाई माइनस पाई बाय 3 आएगा आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में, एंड सेकेंड में साइन जो होता है वो होता है पॉजिटिव, सो इट विल बिकम साइन पाई बाय 3. तो ये 11th क्लास में आपने सीखा होगा बच्चा, 11th क्लास का पार्ट है ये. अब साइन व साइन को ईजिली नलीफाई कर देगा क्योंकि पाई बाय 3 इसकी मॉडिफाइड डोमेन का मेंबर है, एंड यू विल गेट आंसर एज पाई बाय 3, राइट. तो बच्चा, ये साइन व साइन को तभी नलीफाई करेगा जब ब्रैकेट में मॉडिफाइड डोमेन का मेंबर है, और साइन की मॉडिफाइड डोमेन है माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, तो ये उसका मेंबर नहीं था इसलिए हमने इसको चेंज किया. पाई बाय 3 उसका मेंबर था इसलिए कैंसिल होकर हमें आंसर मिल गया. ठीक है, इस पे आते हैं.
tan inverse tan 3 pi by 4, again 3 pi by 4 is not a member of its modified domain. modified domain है tan की minus pi by 2 to pi by 2 and 3 pi by 4 उसमें नहीं आता है. तो इसको भी पहले चेंज करना होगा, एंगल को ब्रेक करना होगा. तो वी विल राइट 3 pi by 4 as pi minus pi by 4. pi minus pi by 4 is in second. सेकेंड में आई होप ये आपको आता होगा, क्लास 11th में आपने सीखा होगा. सो ए एस टी सी एंड पाई, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट एंड दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट. सो पाई माइनस पाई बाय 4 इज इन सेकेंड एंड सेकेंड में टैन होता है नेगेटिव. सेकेंड में साइन एंड कॉसेकेंड पॉजिटिव होता है, तो टैन होता है नेगेटिव. एंड अगर टैन नेगेटिव होता है तो ये ब्रैकेट के अंदर बनेगा माइनस टैन पाई बाय 4. राइट. अब हमने ये सीखा था कि टैन इन्वर्स के अंदर अगर माइनस होता है तो वो माइनस को बाहर निकाल देता है. तो यूजिंग दैट ये माइनस बाहर निकल जाएगा, अंदर बचेगा टैन इन्वर्स एंड देन टैन पाई बाय 4. अब टैन इन्वर्स टैन को नलीफाई कर देगा बिकॉज पाई बाय 4 इज अ मेंबर ऑफ इट्स मॉडिफाइड डोमेन, हेंस द फाइनल आंसर इज माइनस पाई बाय 4. राइट. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 7 पाई बाय 6. बच्चा कॉस की जो मॉडिफाइड डोमेन है वो है 0 to पाई एंड इन 0 to पाई 7 पाई बाय 6 डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट बिलोंग. राइट. तो ये 7 पाई बाय 6 इस एरिया को, इस इंटरवल को बिलोंग नहीं करता है बिकॉज 0 to पाई इज दिस एरिया फर्स्ट एंड सेकेंड एंड 7 पाई बाय 6 थर्ड में आता है. थर्ड में क्यों आता है? बिकॉज दिस इज पाई प्लस पाई बाय 6. तो जितना अच्छे से आपने क्लास 11 किया उतनी आपको हेल्प मिलेगी. ये क्लास 11 का पार्ट है, क्वाड्रेंट. तो अब ये इस एरिया इसके मॉडिफाइड डोमेन में नहीं आता है तो हमें इसको ब्रेक करना होगा. वी विल राइट 7 पाई बाय 6 एज पाई प्लस पाई बाय 6 एंड पाई प्लस पाई बाय 6 इज इन थर्ड क्वाड्रेंट एंड इन थर्ड क्वाड्रेंट कॉस इज, सी हियर, इन द थर्ड कॉस इज नेगेटिव. थर्ड में टी फॉर टैन, टैन एंड कॉट पॉजिटिव होता है, कॉस नेगेटिव होता है. तो अगर कॉस नेगेटिव होता है तो ये विद नेगेटिव साइन आंसर देगा, यानी कि माइनस कॉस एंड दिस एक्यूट एंगल विच इज तो ये आपको नेगेटिव के साथ आंसर देगा, कॉस विद दिस एक्यूट एंगल पाई बाय 6. राइट. नाउ कॉस इनवर्स इज कंटेनिंग माइनस साइन इन देयर आर्ग्यूमेंट. तो हमने सीखा है अगर ये ग्रुप 2 का मेंबर है, ग्रुप 2 का मेंबर माइनस को बाहर निकालते हैं लेकिन पाई को अलग से ऐड करते हैं. सो माइनस बाहर निकला, कॉस इनवर्स ब्रैकेट में बचा कॉस पाई बाय 6. अब ये कॉस इनवर्स कॉस को नलीफाई कर देगा. सो यू विल गेट पाई फ्रॉम हेयर and here pi by 6. So pi minus pi by 6 is 5 pi by 6. So final answer is 5 pi by 6. Right. Now the fourth one. So it is containing sine bracket में pi by 3 माइनस. वी कैन सॉल्व दिस. राइट. तो ये फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है बच्चा, ITF ने माइनस कंटेन किया है, माइनस बाहर निकलेगा, बचेगा साइन इनवर्स हाफ. So sin pi by 3 and sin inverse half होता है pi by 6. So pi by 3 plus pi by 6 is pi by 2 and sin pi by 2 is 1. So final answer is 1. Now the next, cos inverse of cos 13 pi by 6. 13 pi by 6 doesn't belong to its modified domain which is 0 to pi. तो हमें इसे ब्रेक करना है एंड ब्रेक कैसे करेंगे? ये बन जाएगा आपका 2 पाई प्लस पाई बाय 6. 2 पाई प्लस पाई बाय 6. सो 2 पाई, ये डायग्राम का रोल है बच्चा. तो यहाँ पे आता है पाई और आपका आता है यहाँ पे 2 पाई. सो 2 पाई प्लस समथिंग, यानी कि ये एंगल आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है ASTC के अकॉर्डिंग फर्स्ट में होता है A मीन्स ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव इन द फर्स्ट. सो ये आपका आएगा कॉस पाई बाय 6. अब कॉस इनवर्स कॉस को नलीफाई करेगा एंड यू विल गेट आंसर एज पाई बाय 6. राइट. नाउ द सिक्स्थ वन, tan इनवर्स ऑफ tan 7 पाई बाय 6. अगेन tan की जो मॉडिफाइड डोमेन है वो है माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 बट 7 पाई बाय 6 उसमें लाई नहीं करता है. तो इसको हमें ब्रेक करना है. वी विल राइट दिस एज पाई प्लस पाई बाय 6. पाई प्लस पाई बाय 6 इज इन थर्ड एंड थर्ड में tan होता है पॉजिटिव. सो इट विल बिकम tan इनवर्स एज इट इज़ एंड जो अंदर है वो बन जाएगा हमारा tan पाई बाय 6. अब tan इनवर्स tan को नलीफाई कर देगा एंड यू विल गेट पाई बाय 6.
राइट. सो ऑल दीज आर 1 मार्कर्स, लेकिन ये कहीं पे भी 3 मार्क या 4 मार्कर के जो हैवी क्वेश्चन है उसमें बीच में यूज़ हो सकते हैं. एंड चैप्टर 5 में भी ITF का रूल है. नाउ द 7th इज दिस 3π/5. साइन की जो मॉडिफाइड डोमेन है वो है -π/2 to π/2, राइट. अब आपको देखना है कि 3π/5 इसमें लाई करता है नहीं करता. अगर लाई करता है तो डायरेक्टली नलीफाई होकर 3π/5 आ जाएगा, और नहीं करता है तो नहीं आ पाएगा. अब पता कैसे लगाया जाए 3π/5 इसमें लाई करता है या नहीं करता है. तो बच्चा उसके लिए क्या करो, दोनों के डिनोमिनेटर सेम कर लो. तो इसको 10 करने के लिए इसको हम मान लो 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, और इसको 5 से किया, तो ये आया -5π/10 और ये आया 5π/10. सो यू कैन सी ये है 6π/10, तो ये इसमें बिलोंग नहीं करता है. ये इसकी इस इंटरवल से बाहर है, और इस इंटरवल से बाहर है तो फिर ये इसको नलीफाई नहीं करेगा. हमें इसको ब्रेक करना होगा, राइट. तो हाउ कैन वी ब्रेक दिस? आई कैन राइट साइन इनवर्स एज इट इज. Sin 3π/5 can be written as, I can write this as pi minus 2π/5, राइट. अगर आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो वही आएगा 3π/5. अब पाई माइनस समथिंग होता है सेकंड में साइन होता है पॉजिटिव, सो इट विल बिकम साइन 2π/5. एंड अभी ये नलीफाई तभी होगा जब 2π/5 इसकी मॉडिफाइड डोमेन में आता है. सो 2π/5 हमें चेक करना है -π/2 to π/2 में है या नहीं है, राइट. तो सेम थिंग, दोनों के आप डिनोमिनेटर सेम बना सकते हो. इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इट विल बिकम 4π/10, और इसको अगर हम 5 से करते हैं तो -5π/10, 5π/10. एंड येस यू कैन सी दैट 4π/10 विल बी इन दिस इंटरवल. एंड सिंस दिस particular angle, or you can say angle, is in its modified domain, hence ये cancel हो जाएगा and we will get 2π/5. So 2π/5 is the final answer. Now this and tan inverse √3 प्लस का साइन है, डायरेक्ट आप इसकी वैल्यू लिख सकते हो which is π/3 which is 60, and cot inverse is a member of group 2 and it is containing minus, so pi minus cot inverse √3. Now this is π/3 minus pi plus cot inverse √3 which is π/6. So we will get π/2 minus pi, and that is minus π/2. Using this topic you can easily do exercise 2.1, only 2.1, and 2.2 and miscellaneous के कुछ selected question. ठीक है. In next class we will be doing the next concept which is related to 2.2 and miscellaneous. The next lecture we will be learning basic identities of ITFs, and using this we will be doing exercise 2.2 and the miscellaneous exercise. Also we will learn how to convert one ITF to another ITF. Okay bacha, take care, bye bye.